پن جگیتی مدینہ اگر ہم جیتی جا کے طیبہ سے جا کے طیبہ سے واپس نہ الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد قال عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. وقال في موطن آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس بدہاں چھتر کے مختلف سینٹر سے دینی خدمات کی روشنی سپلائی کرنے والے اہم علماء کرام کی جماعت، خاص طور سے اتر پردیش یو پی سے آنے والے عظیم ترین علماء کرام کی جماعت، جس کی اگوائی اور جس کی سربراہی کر رہے ہیں حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ، اور ان کے خاص رفقائے کرام. اس اجلاس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس اجلاس ہی کے نہیں بلکہ اس ادارے کے فاؤنڈر بانی جناب مفتی محمد غیاث الدین صاحب قاسمی چترویدی دامت برکاتہ اس کی نظامت فرما رہے ہیں. اس اجلاس میں آپ آئے ہیں، آپ کا آنا مبارک، بیٹھنا مبارک. اس لیے میں آپ سے چلتے چلتے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ یہاں سے اگر اٹھ کر کے اگر یہاں سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اب وقت آخر ہو چکا ہے، کرسیوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے لیے آ جائیے، اسی فرش پہ بیٹھ جائیے. تو دیکھیے فرش سے عرش تک جانے کی راہیں کیسے ہموار ہوتی ہے، یہ آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا. اور پیچھے جو 5 دوست سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی بانٹ کو کراس کر کے ذرا آگے آ جائیے، آگے کھڑک کر کے آ جائیے. اگر اس اجلاس میں آئے ہیں، دینی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ اس بندے ناچیز کی بات سن کر کے ذرا آگے بڑھ جائیے. مجمع کو ذرا جمع لیجئے، اس مجمع کی خلاؤں کو پور کر لیجئے. انشاءاللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں پیدا ہونے والے خلاؤں کو پور کر دے گا. اس لیے آپ بھی ذرا یہاں سے اٹھ جائیے، یہاں سامنے آ جائیے. اگر جوانوں تمہاری جوانی بات دے رہی ہے، کرسیوں کو چھوڑ کر کے سامنے آ جاؤ. اب تو سامنے آ جاؤ، آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جانے گلستہ. اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ ذرا کرسیوں کو چھوڑ کر کے سامنے آ جائیے. جس طرح سے اسٹیج
रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में भी होना चाहिए। इसलिए मैं अर्ज करते हुए चल रहा हूँ कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना पड़ता है, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना पड़ता है। ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। अगर दुनिया में जीना है तो कोहराम मचा दो, अगर दुनिया में जीना है तो कोहराम मचा दो। इसलिए आज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हिंदिया आज जामिया जन्नतुल मावा के आसपास के इस फील्ड में, इस वसीओ अरीज़ मैदान में तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से एक अज़ीम शान इजलास का इनेकाद अमल में आया है, जिस इजलास में इस बदहा के क़ौम जवार के अज़ीम तरीन मुसलमान और बदहा की सरज़मीं पे बसने वाले आलमी इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी इसमें तशरीफ फरमा है। इस उम्मत की माँ और बहनें भी पर्दे के पीछे बैठी हुई हैं। आपका आना मुबारक और आपका बैठना मुबारक। जो लोग जाए, जो लोग चले गए वो चले गए, उनकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो बैठे हैं जब तक आप बैठे हैं एक अल्लाह के इश्क के समंदर में डूब करके आप बैठने का अहद कर लीजिए और तय कर लीजिए। इंशाअल्लाह प्रोग्राम जब तक चलेगा हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब आपने की आखिरी दुआ तक इंशाअल्लाह इसी तरह से हम जमे रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करके बैठिए और ये हक करके बैठिए। इंशाअल्लाह आपका आना वसूल हो जाएगा, आपका आना बेकार नहीं होगा, आपका बैठना भी वसूल हो जाएगा, आपका सोना भी वसूल हो जाएगा, आपका सफर करना भी वसूल हो जाएगा, आपका पैसा खर्च करना भी वसूल हो जाएगा। इसलिए कि हयात आखिरा इंटरनेशनल ही नहीं, नेशनल ही नहीं, प्रेजेंट दौर के एतबार से इजलास में रिवायती अंदाज में जाना मुजरिमाना हरकत है, मुजरिमाना अंदाज अमल है। आपको जाना चाहिए इसी इजलास में आलमी पैगंबर की आलमी बातें सुनने के लिए, आलमी पैगंबर की आलमी अहकाम सुनने के लिए, आलमी पैगंबर के आलमी अक़वाल सुनने के लिए और अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने जीने को, अपने मरने को, अपनी सुबह को, अपनी शाम को, अपनी खेती को, अपनी बारी को, अपने घूमने को, अपने सैर को, अपनी तहरीक, अपनी तफरीक को मोहम्मद की दीवानगी के पैमाने पर ढालने के लिए अगर आप आए हैं तो आपका आना बेहद मुबारक हो। इसलिए इजलास में कुछ लोग जाते हैं कान को और अपनी आंखों को सेकने के लिए, कुछ बच्चे जाते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में, बैक साइड में, दाएं बाएं मस्तियां करने के लिए, कुछ नौजवान तबका जाता है रोड पर लेफ्ट राइट करने के लिए, कुछ लोग जलसों में आते हैं सिर्फ एंजॉय के लिए, मस्ती और वक्त गुजारी के लिए। खुदा पाक की कसम अब ना वो समय रहा ना वो जमाना रहा। इसलिए कि जिस मदरसे की आवाज पर आप आए हैं ये मदरसा इलाकाई नहीं है, ये मदरसा सिपाही नहीं है, ये मदरसा जिलाई नहीं है, ये मदरसा आलमी है। आलमी मदरसे की आलमी आवाज सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा के दामन में कुछ भी नहीं है सिवाय नबूवत के, सिवाय मस्जिद के। जिस मोहम्मद के दीवाने के सामने न मस्जिद हो न मदरसा हो उसका जीना भी बेकार है और उसका मरना भी बेकार है। जिसके सामने
भी मुबारक इंशाअल्लाह। सारे कह दीजिए इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये मदरसा जिसकी कोख से उम्मत के बड़े बड़े नौजवान पैदा होते हैं, ये मदरसा जिसकी चहारदीवारी से उम्मत की माएँ जन्म लेती है, ये मदरसा जिसकी चटाई से वफात किराम जन्म लेते हैं, ये मदरसा जिसकी चहारदीवारी से उलमा की जमात तैयार होती है, ये मदरसा जिसकी चहारदीवारी में मुफ्तियाने किराम जन्म लेते हैं, ये मदरसा जिसकी चहारदीवारी में उलमा की जमात तैयार होती है, ये मदरसा जिसकी चहारदीवारी में वफात की जमात तैयार होती है, ये मदरसा जिसकी चहारदीवारी में दुनिया में रिफॉर्म के काम को आगे बढ़ाने वाले वफात की जमात तैयार होती है। ये मदरसा न वाशिंगटन का है, न रूस का है, न जापान का है, न इंडिया का है, न किसी और संगठन का है, न तंजीम का है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया कायम करने वाले, दुनिया को बढ़ाने वाले, दुनिया में सूरज की रोशनी जारी करने वाले रब करीम ने मदरसा बनाया है। मदरसे की बुनियाद डाली है। मदरसे की राह में रुकावट पैदा करेगा, हमारे पाक की कसम चलकर राख हो जाएगा। मदरसा कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, इंशाअल्लाह तुम्हें क़यामत तक चमक पैदा करता रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए आप समझते हैं कि हम मदरसों को डोनेशन देते हैं, सदका तो ज़कात देते हैं, फितरात और चर्म कुर्बानी के पैसे देते हैं, तो हम किसी दीनी सेंटर पे एहसान करते हैं। ये जो समझता है उससे बड़ा मुजरिम और उससे बड़ा तय्युस कोई नहीं है। इसलिए कि मस्जिद और मदरसों के अंदर नमाज सिखाई जाती है, मदरसों में अज़ान सिखाई जाती है, मदरसों में मसाइल सिखाए जाते हैं, मदरसों में बाप का मकाम बताया जाता है।